Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is the solution of the partnership form, question number 34, according to new book K.S. Grewal, edition 2020 to 21. And according to old book, it is question number 31, edition 2018-19 or 1920. Now, my dear students, first of all, I would like to say that I have written a question in very short in front of you. First, I will clear the question to you. After that, we will come on the solution. Now, see the question very carefully. Before understanding the question, first is very important. Then we should learn the solution. Question. You have been given three partners in this question. Partner X, Y, Z. And this is the ratio you have been given, 2:2:1. And it is the balance sheet you have been given at the date of the dissolution. The balance sheet says that these are the liabilities: sundry creditors, bills payables, bank loan, general reserve, IFR, investment fluctuation reserve, capitals of X, Y, Z. And on the asset side, cash at bank is 22,500, stock 80,000, debtors minus provision, investment, premises, and loan to the partner, that is Z. In the old question, loan to Z has not been given, and there is a difference between the total of the balance sheet of rupees 10,000 only. In this question, I will teach you this concept as well as according to the last question, means last year's book question 31. Both the concept I will tell you. In the old book, you have not been given the loan to Z in the balance sheet. Now, after this balance sheet, you have been given the adjustments of realizing the assets and liabilities. After all, finally, you have been asked to prepare some accounts. This is the all about question. First, now we are going to give the solution. Hope you have watched my last videos in which I have discussed about the concepts or related to the chapter and the 4 steps in which you are going to solve these types of questions. First step of solution is read the last line of the question and do the format. Read the last line now. Prepare realization account, partners capital account, and bank account. You have been asked to prepare 3 accounts. Now you are doing 3 formats for these. Realization account, partners capital account, and the bank account. 3 accounts you are preparing now. Now you have read this line and you have made the use of this line by doing the formats of realization account, capital account, the bank account. My dear students, the second step of solution is solve the balance sheet of the question. Close the assets account as well as the liabilities account. Only 2 accounts will remain open, that is capital and the bank. Otherwise, all the accounts of assets and liabilities will be closed. Now, I am going to give the revision of the concept and the solution. All the realizable assets are closed. All the realizable assets, or you can say all the assets, are having always debit balance. When the assets accounts are closed, these are credited. So you will pass the journal entry to stock account, to debtor, to investment, to premises. These accounts will be credited to close. But there is a question, which account should be debited to pass the journal entry? A temporary account is opened, that is realization account, in which all these assets shall be realized. This realization account is debited. So, according to the journal entry, that is realization account debit to stock, to debtor, to investment, to premises. We are going to give the accounting treatment here, realization account debit. To all the realizable assets which can be realized: stock, debtor, investment, premises. Realization account debit to stock, to debtor, to investment, to premises. I repeat again.
मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। जितने भी असेट्स हैं आपके उनके अकाउंट्स क्लोज करे जाते हैं। जनरली जैसा कि हमेशा कह सकते हैं असेट्स अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस भी होते हैं, क्लोज करने के लिए उन्हें क्रेडिट करा जाता है। तो आप स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्रीमिसेस के सभी अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क आता है डेबिट क्या करें। एक टेम्पररी अकाउंट रिलेशन अकाउंट खोला जाता है, रियलाइजेशन, तो उसे डेबिट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्रीमिसेस। रियलाइजेशन अकाउंट्स में इन असेट्स को रियलाइज किया जाएगा, मींस इनको बेचकर कैश मंगाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टॉक अकाउंट को 80,000 रुपीज पर क्लोज कर दिया गया। This point is to be noted here. The debtors in the market is 50,000 rupees, less provision for doubtful debt rupees 2,500. This is the provision only for doubtful debt. It does not mean that you have the bad debt. Simply you can say you are having the debtor in the market of rupees 50,000, but you created a provision of rupees 25 only for doubtful. So the debtor should be recorded here at 50,000 means in a value. हम कह सकते हैं डेटर्स 50 के थे, 50 में से 2500 माइनस करके बाहर 47,500 लिखा हुआ है। लेकिन मार्केट में जो डेटर्स 50 के थे आज भी 50 के ही हैं, तो आपको ये 50 वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना है 50,000 पर, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल होता है कि शायद डूब जाए। अब ये कंफर्म नहीं है डूबेगा या नहीं डूबेगा। और जितने भी प्रोविजंस, रिजर्व्स, सरप्लस होते हैं इनके सभी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन, बच्चे क्या करते हैं टू रियलाइजेशन को रियलाइजेशन के टू में लिख डालते हैं, जबकि जनरलिटी है वहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट है, टू रियलाइजेशन यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंशन करना है, ये वाला। इस तरीके से आपने इस अकाउंट को भी जिसका क्रेडिट बैलेंस था डेबिट करके क्लोज कर डाला और असेट्स अकाउंट आपने ये क्लोज कर दिए। अब बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रीमिसेस नहीं है। अब बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में दो चीजें नजर आ रही हैं, टू आइटम्स, बैंक और लोन टू जेड। जेड एक पार्टनर है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आप लायबिलिटी साइड देखें, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक लोन, ये तीनों ही आपकी एक्सटर्नल रियलाइजेबल लायबिलिटीज हैं। आई रिपीट अगेन, लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, उनको क्लोज करेंगे तो डेबिट किया जाएगा। एंट्री बनेगी सन्ड्री डेटर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट, लॉन डेबिट। क्रेडिट क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, तो जनरल एंट्री बन गई। जनरल एंट्री के बेस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया बिल्स पेबल से, क्रेडिटर्स और लॉन। साथ के साथ IFR यानी कोई ऐसी असेट जिससे रिलेटेड कोई रिजर्व वगैरह है, तो वो रिजर्व भी आपका क्लोज कर दिया जाएगा। जितने भी रिजर्व हैं उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, क्लोज करेंगे तो डेबिट। IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है IFR से। इस तरीके से आपने क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया, बीपी को डेबिट किया, लोन को डेबिट किया और IFR अकाउंट को भी डेबिट किया और डेबिट करके इसको क्लोज किया। अब आपके अकाउंट्स लगभग क्लोज हो चुके हैं, कुछ अकाउंट्स बचे हैं। देखिए, अब आपने कैपिटल्स के बैलेंसेस जो कि क्रेडिट होते हैं हमेशा, इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की, क्रेडिट होते हैं। कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड या ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिख दिया। 75,000, 75,000, 25,000 और इस तरीके से आपने इसे यहां से भी हटा दिया। अब बात करते हैं जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व पुराने प्रॉफिट्स
का एप्रोप्रिएशंस होता है जो बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज होता है। आज जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो इस जनरल रिजर्व जो एक प्रॉफिट का पार्ट है, एप्रोप्रिएशन है, अलोकेशन है, इसको पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उससे इनकी कैपिटल बढ़ जाएंगी। कैपिटल बढ़ना मीन्स कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट किया जाएगा। और वैसे भी अभी मैंने बताया था लायबिलिटीज में जो भी अकाउंट्स लिखे जाते हैं यानी जनरल रिजर्व, प्रोविजंस वगैरह, इनके अकाउंट क्रेडिट होते हैं। जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्लोज। कैपिटल बढ़ाओगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड मींस कैपिटल क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व के अकाउंट को क्लोज किया डेबिट करके और कैपिटल्स के बैलेंसेस बढ़ा दिए जनरल रिजर्व से, इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20,000 20,000 10,000। ओल्ड रेशियो मींस एक ही रेशियो था 2:1, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2:1 के रेशियो में आपने से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप देखें बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा है, जेड का लोन और कैश बचा है। अब कैश लोन है, देखिए आपके पार्टनर जेड जिसे फर्म ने लोन दिया हुआ है, इसमें फर्म की एसेट है 10,000 का। आप जेड से बोलेंगे जो घर जाके 10,000 रुपीज लेकर आओ, और जब लाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारी कैपिटल का हिस्सा दे देंगे जो लगभग 49,000 के आसपास बचता है। तो कहेगा सर 49 के आसपास मेरी कैपिटल का पेमेंट आप करोगे तो मुझे घर क्यों भेज रहे हो, मेरे लोन को एडजस्ट कर दो, मैं नहीं डाला घर से लोन का पैसा, मेरी कैपिटल को कम कर दो और लोन अकाउंट को क्लोज कर दो। बिल्कुल ठीक है, जब वो लोन का पैसा नहीं ला रहा, ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो क्रेडिट, उसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं, ठीक है। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन, इस तरीके से इस लोन अकाउंट को क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज। एंट्री देखें, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है जेड्स लोन अकाउंट से, जेड्स लोन अकाउंट 10,000। आई रिपीट अगेन, आप जेड से कहते हो, फर्म कहती है जेड से 10,000 रुपीज अपने घर से लेकर आओ क्योंकि लोन लिया था और फिर हम आपको पेमेंट करेंगे, तो इससे तो अच्छा है उसको नेट इफेक्ट निकालो, जो भी उसको लाना था 10,000 उसका माइनस कर दो उसकी कैपिटल से, तो कैपिटल से माइनस करेंगे तो माइनस कर दी कैपिटल, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, इस तरीके से वो अकाउंट क्लोज हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में बैंक की, कैश एट बैंक, तो ये बैंक हमारी असेट होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस आपने बैंक अकाउंट बनाया और डेबिट साइड में मेंशन कर दिया 22,500। नाउ यू कैन सी you are not having any balance or any item in the balance sheet of the question, क्योंकि dissolution means firm का एंड हो जाना और कोई भी अकाउंट खुला हुआ नहीं बचना, तो आपके सारे अकाउंट्स इसमें क्लोज हो चुके हैं, कोई भी अकाउंट ओपन नहीं रहा। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल you read the last line of the question and draw the format. Second, you check the balance sheet of the question and close all the accounts, except the necessary accounts. Third step, solve the adjustments of the question given in the question to realize the assets and liabilities. This is the third step. Now see here, a bill received from Mohan. Mohan is a debtor. Discounted with the bank is not met on the maturity. पता चला है कि एक बिल था हमारा जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया था, आज मैच्योरिटी डेट पर पता चला कि उसका पेमेंट नहीं होने वाला, मींस डिसऑनर हुआ है। देखिए डिसऑनर की जनरली हम कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते, हम बिल रिसीवेबल बढ़ा देते हैं, बिल रिसीवेबल को कम कर देते हैं, या कह सकते हैं यहाँ बैंक को कम करके डेटर्स को बढ़ा देंगे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। और इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड अभी हमें एक एडजस्टमेंट और दी हुई है, फोर्थ, जब ये फोर्थ आएगी इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल सेकंड एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में मैंने लिखी है,
Investments were realized for rupees 56,500. मीन्स इन्वेस्टमेंट से रियलाइज, इन्वेस्टमेंट को सेल करके 56,500 रुपीज कैश आया। नेक्स्ट, अदर एसेट्स रुपीज 3,25,000, बाकी जो असेट्स हैं 3,25,000 में सेल हुई। तो आपका इस असेट को इन्वेस्टमेंट से और ये अदर असेट्स जो भी थी आपकी फिक्स असेट्स, चाहे वो डेटर्स हो, प्रीमिसेस हो या स्टॉक हो, उन सब से रियलाइज करके 3,25,000 आई। अब फोर्थ भी पढ़ लें जरा। फर्स्ट के साथ बिल जो रिसीव हुआ था मोहन से, डिस्काउंट कराया था बैंक से, अब वो मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर हो गया। मोहन ने कहते पेमेंट नहीं कर रहा। फिर वो क्या कहता है, मोहन प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मींस नाउ ही इज नॉट इन द पोजीशन टू पे द डेट्स ऑफ हिज फर्म, और उसकी एसेट से हमें 50% ही रियलाइज हो चुका सका, बस 50% रियलाइज हो चुका सका। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का जो टोटल आ रहा है रिसीव होकर बीआर से, इन सब से बैंक में कैश बढ़ाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि जब आपकी असेट्स रियलाइज होती हैं, असेट्स को रियलाइज करके आपके पास जो कैश आता है या बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो असेट आपकी बढ़ती डेबिट किया जाता है। लास्ट मैंने वीडियो में बताया था, आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनानी है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अब इन्हीं अकाउंट्स के बेस पर करेंगे। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट। जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्री होनी है, असेट्स को बेचकर जब कैश आया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, बैंक बैलेंस, और बैंक इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया जाता है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, और जो भी अमाउंट रिसीव हुआ हो असेट से, इन्वेस्टमेंट से या बिल से, वो आपका टोटल ये आ गया। और बिल का अमाउंट कितना था मोहन से, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना था और कितना रिसीव हो गया। अब इसके बाद क्रेडिटर्स, जब आपकी एडजस्टमेंट नहीं बचती हैं तो लास्ट में कहा है 5 क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स का पेमेंट कितना हुआ, ये शॉर्ट में लिख देंगे एडजस्टमेंट 57,500, और रियलाइजेशन का पेमेंट किया 15,000। तो ये दो आपके पेमेंट हुए। पेमेंट होंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक को क्रेडिट करना, असल कम तो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखें जरा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिस्क्लोज किया बिल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, लोन। ये लोन वो है जो आपको यहाँ लायबिलिटीज में तो दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में कहीं नहीं है। आप एडजस्टमेंट्स के बाद बैलेंस शीट चेक करते हैं, या यहाँ देखें कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रह गई कि जिससे रिलेटेड या जिसके रियलाइजेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट ना हो। यदि कोई ऐसी लायबिलिटी बचती है कि जिसका आपने एडजस्टमेंट में कोई जिक्र नहीं किया या रियलाइज करके नहीं दिखाया, उसका बुक वैल्यू पर पेमेंट होता है। तो आपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स की एडजस्टमेंट देख ली, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो बीपी, क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको बैंक के लोन का बुक वैल्यू पर पेमेंट करना है, और टोटल पेमेंट क्या बनता है आपका 1,17,500, और असेट्स को रियलाइज करके कितना आया 3,84,000। और इस तरीके से आपका रियलाइजेशन पूरा हो चुका है, एडजस्टमेंट कोई नहीं बची। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। पहला था रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड नो द फॉर्मेट। सेकंड, बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन, क्लोज ऑल द अकाउंट्स एक्सेप्ट दीस टू। थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ फोर्थ, क्लोजिंग। फोर्थ स्टेप होता है हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग आपकी पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। और यदि लोन टू पार्टनर अकाउंट है, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, फर्म ने लोन से पार्टनर से लोन लिया है तो पहले वो बंद होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको केवल 3 अकाउंट्स है, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं। आपने इस साइड पर टोटल किया 5,28,000,
सेम टोटल आपने यहाँ मेंशन किया 5,28,000 माइनस कर दिया डेबिट का टोटल, और डेबिट का टोटल माइनस करने के बाद आपको जो प्रॉफिट आया वो 74,000 का आया, और इसे आपने पार्टनर्स के रेशियो 2:1 में ट्रांसफर कर दिया, लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 2:1 में आपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया। इससे जर्नल एंट्री क्या बनती है, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही जर्नल एंट्री देखी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल तो टू साइड लिख देते हैं। ये मिस्टेक प्लीज बार बार ना करें। टू एक्स कैपिटल का मतलब है कि एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड लिखें, इस टू वर्ड पर ना जाए, क्योंकि डेबिट क्या हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स मींस टू मींस यहां पर इसकी कैपिटल क्रेडिट हुई क्रेडिट हुई क्रेडिट हुई, यह है आपका प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, एक्स का टोटल क्रेडिट साइड, इनका क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, सेम टोटल आपने यहां मेंशन किया। डेबिट में यदि कोई आइटम है तो माइनस करके बैलेंस लिखा, और ये बैंक बैलेंस आपका इस बार बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं, डिसोल्यूशन है, सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा, तो बैलेंसिंग फिगर करके बैंक से पेमेंट करना है। क्रेडिट, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट इफ देयर इज एनी, द बैलेंस इज 1,24,600, in the same manner 1,24,600 for Y and Z, 49,800 minus 10, balance is 39,800. This is the payment. So you can see the journal entry, X capital account debit, Y capital account debit, Z capital account debit to bank. To bank means बैंक क्रेडिट हुआ है, तो बैंक को आप देखें क्रेडिट हुआ किससे, Z की कैपिटल से, Y के कैपिटल से और X की, X Y Z तीनों की कैपिटल से क्रेडिट हुआ। अब आपने बात करनी है बैंक की। देखिए बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ था यहाँ 3,84,000 से, तो बैंक अकाउंट डेबिट था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू डिस्क्लोज इन ब्रैकेट आई हैव रिटन हियर असेट्स। बैंक क्यों डेबिट को रियलाइजेशन से, असेट्स सेल करके कैश आया 3,84,000 का, और फिर देखें बैंक बैलेंस कम हुआ था, गिरा लायबिलिटीज को रियलाइज करके, तो बैंक बैलेंस कम मींस क्रेडिट हुआ, लायबिलिटीज को रियलाइज करके बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आपने लिखा लायबिलिटीज, ये आ गया। अब इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट भी बन गया। आप इसको क्लोज करेंगे तो कोई भी कैसी भी बैलेंसिंग फिगर निकलकर नहीं आएगी, इसका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा इसका, और यदि इक्वल नहीं मैच होता है तो समझे कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई है। क्यों? क्योंकि जितना कैश अवेलेबल था प्लस जितना कैश आया टोटल कैश, उतना ही आप पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। आई होप that you have got all the concept of this video, and from the question you will write here the amount of the bill. Let me now only this amount was left in the question to write. I have mentioned here ये एडजस्टमेंट थी जिसमें लिखा था कि मोहन से 5,000 रुपीज़ चाहिए थे और उससे आपने जो बिल था वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, डिसऑनर हो गया। 5,000 में से हाफ अब मिलना है 50%, तो 2,500 तो ये मिल गया, 2,500 में आपने ये ऐड कर दिया जो इन्वेस्टमेंट से आया, तो यहाँ हो गया 59,000, 59,000 फिर असेट्स को कैश इन्वेस्ट किया, टोटल आपका ये कैश बन गया, तो ये एडजस्टमेंट में अमाउंट रह गया था। I hope that you have liked this video and you have got all the types of concepts from this question, and if you like this video, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.